Hello everyone. We are doing chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. This is the third video of the chapter, class 12th Biology. In this video, we will cover the topics transcription and genetic code. We have already done what is central dogma. As per central dogma, the formation of RNA from DNA is called as transcription, and the formation of protein from RNA is called translation, and formation of DNA from DNA is called replication. So in this video we will do transcription. Transcription, it is a process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA. Okay, so we are making RNA from DNA. We are copying the genetic information from one of the strand of DNA. Okay, second important point about transcription is here adenine forms base pair with uracil instead of thymine. In DNA there is thymine, but in RNA along with A you will join, you will make the pair. Adenine के साथ uracil base pair बनाएगा. So the bases which are used for making RNA are adenine, guanine, cytosine and uracil. Third point, the DNA dependent RNA polymerase catalyzes polymerization only in 5' to 3' direction. This is the name of the enzyme. DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ये RNA बनाने में हेल्प करेगा और कौन सी डायरेक्शन में RNA बनाएगा? इन द डायरेक्शन 5' to 3'. So out of the two DNA strand, which will act as a template which will help in the formation of RNA? This is the 3' to 5' of DNA will help in the formation of RNA. So आपके सामने है 3' to 5' ब्लू कलर से लिखा हुआ है एंड 5' to 3' रेड कलर से लिखा हुआ है. These are the two strands. Out of these two strands, 3' to 5' DNA will help in the formation of RNA, and this is called as template strand, and the other strand is called as the coding strand. Next important thing about the transcription, both strands of DNA are not copied during transcription. Very important कि दोनों DNA के स्ट्रैंड क्यों नहीं RNA बना देते? Only one strand ही क्यों बना रहा है RNA? Two reasons are there. First, the code for proteins is different in both the strands. दोनों strands में जो प्रोटीन का कोड है वो अलग अलग है, दोनों ऑपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है. This complicates the translation. Second, अगर ये दोनों ही RNA बनाएंगे तो दो RNA जो बनेंगे वो भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और दोनों आपस में ज्वाइन कर देंगे and they will form the double stranded RNA, and again it will prevent the translation. So it is not possible कि दोनों DNA के स्ट्रैंड RNA बनाएं. What is transcription unit? It is the segment of DNA between the sites of initiation and termination of transcription. जहाँ से initiation होता है, जहाँ से transcription start होता है और जहाँ terminate होता है transcription, उन दोनों के बीच का जो distance है that is called as a transcription unit. It has three parts. आपके सामने डायग्राम बना हुआ है. डायग्राम में देखिए, फर्स्ट इज प्रोमोटर, सेंटर में स्ट्रक्चरल जीन है और नेक्स्ट इज टर्मिनेटर. The 3' to 5' DNA strand will act as a template strand and 5' to 3' DNA strand will act as a coding strand. Where the promoter is present, where the terminator is present? The promoter is present at the 5' end of the coding strand. Remember, it is present on the 5' end of the coding strand, while the terminator is present at the 3' end of the coding strand.
सो इन दोनों की पोजीशन जो है हम कोडिंग स्ट्रैंड से कैलकुलेट करते हैं। प्रमोटर क्या है, व्हाट इट डज? प्रमोटर बाइंड इज अ बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। यहां आरएनए पॉलीमरेज आकर फिक्स होता है, बाइंड करता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर, और ये बेसिकली इट हेल्प्स इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। टर्मिनेटर क्या है? इट इज अ साइट वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स, जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, सो टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट द 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड डाउनस्ट्रीम, और the promoter is present at the 5 prime end upstream. Okay, next, what is a gene? Gene is a functional unit of inheritance. ये तो क्लियर है आपको कि ये फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की। इट इज द डीएनए सीक्वेंस। ये वो डीएनए का सीक्वेंस है जो कोड करता है आरएनए को, और एनी टाइप ऑफ आरएनए, वेदर इट इज मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, कोई भी आरएनए हो सकता है, और जो भी डीएनए उसको इन तीनों में से किसी को भी कोड करता है, दैट इज कॉल्ड एज जीन। बट व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। रिमेंबर, ये सिस्ट्रॉन वो पार्ट है डीएनए का जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस it is the largest element of the gene. Structural gene is in a transcriptional unit is of 2 types. 2 तरीके के structural unit हैं। ये बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, promoter, structural gene and terminator. Structural gene transcription unit में 2 तरीके के होते हैं। They may be the monocistronic structural gene, जिनको split genes भी कहा जाता है, और ये यूकैरियोट्स में देखे जाते हैं। डायग्राम देखिए, नीचे वाला डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम, मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन लिखा हुआ है। हेयर कोडिंग सीक्वेंस आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स कोड करने वाले हैं, पार्ट है जीन का, लेकिन जो इंट्रॉन्स हैं ये इंटरप्टेड पार्ट है, इंटरवीनिंग पार्ट है, ये किसी को कोड नहीं करते हैं। वी हैव टू रिमूव देम। एक्सॉन्स अपीयर इन द प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए। जब एक्सॉन्स जो होते हैं वो अपीयर होते हैं, दिख जाते हैं मैसेंजर आरएनए, जब प्रोसेस किया जाता है तो एक्सॉन्स तो मिलेंगे उसमें, लेकिन इंट्रॉन्स दे डू नॉट अपीयर इन द प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए, इनको हटाना पड़ता है इंट्रॉन्स को। दूसरा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में देखे जाते हैं, एंड देयर इज नो स्प्लिट जीन्स, इसमें कोई बीच में इंट्रॉन्स नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूएशन में इनके पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पे चलते हैं जो प्रोकैरियोट्स में देखा गया है। इन बैक्टीरिया, सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर कैटालाइज्ड बाय अ सिंगल एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज। एक ही एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो सभी तरीके के आरएनए को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, और ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इन तीनों को हम 1 by 1 देखते हैं। अब इनिशिएशन, हेयर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स एट द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए। फर्स्ट डायग्राम देखिए, या नंबर 1 लिखा हुआ है, डीएनए के पास आकर आरएनए पॉलीमरेज फिक्स हो गया है येलो पार्ट पर। येलो पार्ट इज अ प्रमोटर, ओके, और इस पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आरएनए अटैच टू द प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए, ओके, और इसको आरएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए इट ऑल्सो नीड्स वन फैक्टर कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। देखो ऑरेंज कलर का आरएनए पॉलीमरेज है, उसके अंदर एक सिग्मा फैक्टर बना हुआ है, तो सिग्मा फैक्टर इज मस्ट, इट शुड बी प्रेजेंट इन द आरएनए पॉलीमरेज टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब ये दोनों तैयार हो गए हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंड सिग्मा फैक्टर, दे अटैच टू द प्रमोटर साइट, एंड नाउ दे स्टार्ट ओपनिंग द डीएनए। अब डीएनए को धीरे धीरे ये खोलना शुरू करेंगे, अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा डीएनए लोकली, उसी जगह पर जहां पर ये अटैच है, बस उस वाले पार्ट पर वो खुल जाएगा थोड़ा सा डीएनए। दिस इज द इनिशिएशन। नेक्स्ट इज इलोंगेशन। देखिए अब आप, सिग्मा फैक्टर अलग हो चुका है, आगे
आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है और जैसे जैसे मूव कर रहा है डीएनए ओपन होता जा रहा है और आरएनए बनता जा रहा है। आरएनए येलो कलर का है जो आरएनए पॉलीमरेज से अभी भी फिक्स्ड है, जॉइंड है। तो आरएनए बन रहा है और आरएनए पॉलीमरेज आगे चल रहा है। और किस डायरेक्शन में आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है ये अब आपको पता है, इट इज इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और इसमें सबस्ट्रेट क्या है, क्या चीज ऐड हो रही है यहाँ पर आरएनए बनाने में? इट इज एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। डीएनए के बनाने में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज हो रहा था और आरएनए के बनाने में राइबोस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज होगा। ओके, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट। और कौन सा वाला न्यूक्लियोसाइड आकर लगेगा? डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए में अगर ए है तो आरएनए में यू लगेगा, डीएनए में अगर सी है तो आरएनए में जी लगेगा। ओके, इन दिस वे द आरएनए विल स्टार्ट फॉर्मिंग। दिस इज द इलोंगेशन। यहां दोनों साइड पे 2 नंबर पर देख लीजिए, इलोंगेशन हो रहा है। थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। व्हाट हैपन्स? अ टर्मिनेटिंग फैक्टर, यहां फिर से जब टर्मिनेट होना है, कंप्लीट हो गया है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो एक और फैक्टर चाहिए, रो फैक्टर। इट बाइंड्स विद द आरएनए पॉलीमरेज और जैसे ही ये बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज को छोड़कर सेपरेट हो जाता है। देखिए आरएनए अलग हो चुका है और आरएनए पॉलीमरेज के अंदर रो फैक्टर फिक्स्ड है। आरएनए पॉलीमरेज भी बाहर आ गया और आरएनए भी बाहर आ गया और ऊपर देखिए डीएनए में ग्रीन कलर का जो पार्ट है दैट इज द टर्मिनेटर ऑफ द डीएनए। सो जैसे ही टर्मिनेटर आया आरएनए पॉलीमरेज ने रो फैक्टर के साथ फिक्स ज्वाइन किया और टर्मिनेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन का। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। In bacteria, very interesting thing happens. In bacteria, transcription and translation can be coupled. एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और साथ साथ ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन भी शुरू हो जाता है। डायग्राम नंबर 1 देखिए, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोट लिखा हुआ है, इसमें 1 जहां नंबर 1 लिखा हुआ है ब्लू कलर से, वहां पर डीएनए से आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है। अब मैसेंजर आरएनए को प्रोसेस होने की जरूरत नहीं है, ये तो परफेक्ट है। तो साथ साथ देखिए जो प्रोटीन है वो भी सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। पर्पल कलर के जो है प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन विल स्टार्ट फॉर्मिंग साइड बाय साइड। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही है? 2 रीजन है इसके। 1, मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स थे ही नहीं, तो ये तो बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो सकता है। सेकंड, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेम ही कंपार्टमेंट में दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, तो इसीलिए दे कैन बी कपल्ड टुगेदर। बट इन यूकैरियोट्स दीज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दे आर नॉट कपल्ड। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यहाँ पर यूकैरियोट्स में 2 मेजर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। पहला, देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस। वहाँ पर तो ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज था प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिफिकल्ट पॉइंट क्या है? द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो पहला आरएनए बनेगा हेट्रोजीनियस आरएनए, उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होंगे, एंड दिस इज नॉन फंक्शनल, ये यूजलेस है। इसलिए कब तक कि उसमें से इंट्रॉन्स को रिमूव ना कर दिया जाए। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटीज को हम आगे देखते हैं। कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेजेस हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। डायग्राम में भी देख सकते हो, आरएनए पॉलीमरेज 1 विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इट ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल आरएनए। RNA polymerase 2 transcribe the heterogeneous nuclear RNA, which is it is the precursor of messenger RNA. Messenger RNA का precursor है heterogeneous RNA. और RNA polymerase 3 it transcribes transfer RNA, 5S RNA
एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस के बनाने में आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड डिफिकल्टी जो था उसको सॉल्व करना है अब हमें। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो हमारे पास हेट्रोजीनियस आरएनए बना उसको प्रोसेस करना है। इसको प्रोसेस करने के लिए 3 स्टेप में ये प्रोसेस चलेगा। डायग्राम देखिए, यहाँ पर जो पहला डायग्राम है उसमें जो इधर कैपिंग, इसमें 3 स्टेप दिए हुए हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, फ्रॉम हेट्रोजीनियस आरएनए इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर। इंट्रॉन्स को हटाना है, एक्सॉन्स को ज्वाइन करना है। ओके, देखिए यहाँ पर 1 2 3 थर्ड नंबर का येलो कलर का स्ट्रैंड देखिए, उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर के जो इंट्रॉन्स थे वो सर्कल बना रहे हैं और एक्सॉन्स आपस में सारे येलो कलर के ज्वाइन हो गए। सेकेंड स्टेप क्या है, कैपिंग। हियर अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड मिथाइल ग्यूएनिसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां देखो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर देखो कैपिंग लिखा हुआ है, जी ऊपर स्मॉल m और नीचे PPP ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्यूएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आकर ज्वाइन हो जाता है एट वन एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिंग एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द हेट्रोजीनियस आरएनए। 5 प्राइम एंड पर आकर ये ज्वाइन होगा। और टेलिंग कहाँ होगा, एट द 3 प्राइम एंड। यहाँ पर पॉली एडिनाइलेशन होगा जहाँ पर एडिनाइलेट रेजिड्यूज आकर ज्वाइन होंगे, जिसमें 200 to 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज होंगे, वो टेल बना देगा। सो स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग के बाद नाउ हेट्रोजीनियस आरएनए हैज चेंज टू मैसेंजर आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैसेंजर आरएनए हमारा तैयार हो गया है फॉर द ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। नाउ कम टू जेनेटिक कोड। अब इस मैसेंजर आरएनए में क्या इंफॉर्मेशन है? व्हाट इज द जेनेटिक कोड? इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जिस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हैं, दैट कंटेन द जेनेटिक कोड that contains information for protein synthesis. Translation diagram देखिए, यहाँ पर sequence of 3 bases AUG, UAC, GUA, CGU, ACG, UAC, like this. There are 9 codons. Sequence of 3 bases, they form 1 codon और वो एक सिंगल एमिनो एसिड को डिटरमाइन करता है। The sequence of 3 bases determining a single amino acid is called as codon. So AUG is a codon, UAA is a codon. George Gamow suggested that for coding 20 amino acids, as we know that we have total 20 amino acid in our body, और उस 20 amino acids के combination से इतने सारे proteins बनते हैं। So for coding 20 amino acid, the code should be made up of at least 3 nucleotides. Thus in all, overall there are 64 codons. 64 codons हैं total और 3 nucleotides का एक codon है। Clear? यहाँ पर list of amino acids हैं, 20 amino acids. You go through this list and try to learn them if you can. So 20 amino acids are involved in the translation process, and in this square you find the codes for every amino acid. Okay, codes are there and codes में क्या है, 3 bases के sequence हैं। जैसे नीचे देखिए GUU, वो वेलिन को आइडेंटिफाई कर रहा है, वेलिन एमिनो एसिड को कोड करेगा। Clear? So there are different amino acids and different 64 codons are there in this table. Now let us study the characteristic features of the codes, genetic code. First, codon is triplet, 3 के ग्रुप में मिलेगा, 3 letter code, AUG, UAC, GUA, always in triplet. Out of 64 codon, number 2 point, out of 64 codons, 61 codons code for amino acids and 3 they are nonsense codons,
और टर्मिनेशन कोडॉन। जैसे ही एक कोडॉन आता है टर्मिनेशन हो जाता है, प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। UAA, UAG, UGA। डायग्राम में भी देखिए आप नीचे UAA 3 प्राइम एंड पर लिखा हुआ है, इट इज द स्टॉप कोडॉन, और 5 प्राइम एंड पर AUG लिखा हुआ है। दिस AUG हैज ड्यूअल फंक्शन, 2 फंक्शन है इसके। एक तो ये इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है प्रोटीन को बनाने में, एंड सेकेंड इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन एंड एक्ट्स एज अ इनिशिएटर कोडॉन। In eukaryotes, methionine is the first amino acid and formyl methionine in prokaryotes is the first amino acid. Next character क्या है? An amino acid is coded by many codons. हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं और 61 कोडॉन्स हैं, तो एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन को आइडेंटिफाई कर सकता है। एक्सेप्ट AUG सिर्फ मिथ्योनिन को देखता है और UGG सिर्फ ट्रिप्टोफैन को देखता है। ये एक्सेप्शंस हैं। सच कोडॉन्स आर कॉल्ड एज डीजेनरेट कोडॉन्स, जिसमें एक एमिनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन्स को कोड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर, नो पंक्चुएशन बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन। एक कोडॉन और दूसरे कोडॉन के बीच में कोई बीच में ब्रेक नहीं होता, कॉमालेस कोड होते हैं। द कोडॉन इज रेड इन मैसेंजर RNA इन अ कॉन्टिग्यूअस फैशन। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। व्हाट डू मीन बाय दिस? यानी यू है तो वो चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, ये किसको कोड करेगा? ओनली टू फिनाइलएलानिन। इट इज यूनिवर्सल। Some exceptions are found in mitochondrial codon and in some protozoans. Next character, genetic code is non-overlapping. कोई overlapping नहीं है कि G इधर भी आ गया और G उधर भी चला गया आगे। No. AUG और GUA ये नहीं हो सकता, AUG UAC होगा, तो they are non-overlapping. Next, genetic code is unambiguous and specific. One codon specify only one amino acid. एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को ढूंढेगा, उसको ही कोड करेगा, बट एक अमीनो एसिड कई सारे कोडॉन्स को कोड कर सकता है। जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एंड इट इज वेरी स्पेसिफिक। अब आइए एक और चीज देखते हैं कि अगर कोई चेंज आ जाए इस सीक्वेंस में तो क्या हो। रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड द DNA are best understood by mutation studies. DNA और जीन्स में क्या रिलेशन है, म्यूटेशन की स्टडी करें तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। डिलीशंस, कोई चीज़ निकल जाए, और रीअरेंजमेंट इन अ DNA में कोई रीअरेंजमेंट हो जाए, कोई डिलीशन हो जाए, दिस में कॉज लॉस और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। फंक्शन भी लॉस हो जाएगा, फंक्शन भी बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस। अगर एक बेस का या 2 बेसिस का इंसर्शन हो जाए या डिलीशन हो जाए, ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए, तो क्या होगा? इट चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। जहां पर वो इंसर्शन हुआ है उसके आगे से सारा रीडिंग फ्रेम खराब हो जाएगा, सारा सीक्वेंस ऑफ जो एमिनो एसिड लगना था वो बेकार हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें एक बेस का इंसर्शन हुआ है, G बेस ऐड हो गया ग्रे कलर का, सेंटर में जो था वो बिल्कुल नॉर्मल था, 9 कोडॉन्स हैं इसमें, तो AUG, UAC, GUA, CGU, ACG, UAC, GUA, CGU एंड UAA, ये सीक्वेंस था। अब यहाँ पर G ऐड हो गया तो ऊपर वाले जो कोडॉन है उसका सीक्वेंस बदल गया सारा। क्या होगा? नाउ इट विल बी GAC, GUA, CGU, ACG, UUA एंड एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, तो यानी रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया। अब कोई और एमिनो एसिड आकर यहाँ पर ऐड होने शुरू हो जाएंगे। नीचे वाले में आ जाइए, अगर डिलीट हो जाता है, A को डिलीट कर देते हैं, पिंक वाला A है उसको डिलीट कर दो, तो फिर से शिफ्टिंग हो गई, अब सीक्वेंस चेंज हो गया।
अब क्या हो गया सीक्वेंस, CGU, ACG, UAC, GUU एंड UAA, ये दो ए अलग हो गए, इसका U आगे चला गया तो इसमें फिर से फ्रेम शिफ्ट हो गया। ओके, सो अगर 1 बेस ऐड हो जाए, 2 बेस ऐड हो जाए, या 1 बेस डिलीट हो जाए, 2 बेस डिलीट हो जाए, तो फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन हो जाता है। और अगर 3 बेसिस का एडिशन या 3 बेसिस का डिलीशन हो जाए तो क्या होगा, 3 बेसिस ऊपर वाले में ऐड हो गए हैं GAG और नीचे वाले में से ACG डिलीट हो गया, तो देयर विल नॉट बी एनी ऑल्टरेशन इन द रीडिंग फ्रेम। रीडिंग फ्रेम तो यहाँ पर ACG है तो वो अपना ACG अपने आप एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई कर लेगा, बट ऊपर वाले में क्या होगा कि एक एडिशनल एमिनो एसिड आकर लग जाएगा GAG के साथ, और नीचे में क्या होगा, ACG निकल गया तो एक एमिनो एसिड मिस हो जाएगा। बाकी आगे का कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है, रीडिंग फ्रेम अनऑल्टर्ड रहता है। क्लियर? इट प्रूव्स दैट कोडॉन इज अ ट्रिपलेट एंड इज रेड कॉन्टिग्यूअसली, नॉन स्टॉप रीडिंग चलती है इसमें से। ओके, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक कोड। डू द क्वेश्चंस गिवन इन द बॉक्स, subscribe the channel for the next video, and in the next video we'll try to complete the chapter. Okay, we'll do the translation. Okay, thank you very much, thank you so much.